present here. I'm Faria Mahek. I am Kulsum, and we are thrilled to have you with us for this special session of Career Guidance Program organized by Falcon Group of Institutions. As the great Zig Ziglar once said, success means doing the best we can with what we have. Success is the doing, not the getting. It's in the trying, not the triumph. And today, we try to learn, explore, and grow together. The Quran is a guidance for entire humanity, providing teaching on faith, morality, and life challenges. The Quran is founded for its spiritual significance, literary beauty, and timeless wisdom. Let's come together for Quran recitation, embracing peace and tranquility. I would like to call upon Hazrat Ahmad to enlighten us through his tale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. One and all gather here. It gives me immense pleasure and warmth that I welcome you all to today's career orientation program and felicitation ceremony here at Falcon Institution. This event is a significant part of our academic calendar and we are truly honored to have such a diverse and enthusiastic gathering. We are truly honored to have with us some very special guests today. Please join me in welcoming. I would like to welcome public speaker Shwet Balai sir, Professor Nabijan, the principal of Regional International School Mujibullah sir. A special welcome to our respected guests, honorable speakers, faculty members and all the enthusiastic students joining us today. We are here to explore the paths that lead us towards our future goals and this session is going to be a valuable step in their journey. Today's program serves two important purposes. Firstly, the career orientation program is designed to provide our students with particular guidance and clarity about their future career paths. We live in a world where the professional landscape is evolving rapidly with emerging industries, new technologies and shifting demands in a job market. Through this orientation, students will gain and explore the various career options, skill set in demands, higher education opportunities, and industry expectations. We are fortunate to have with us a panel of experts, professionals, and alumni who have paved successful paths in their respective fields. Their knowledge, experience, and advices will help our students make informed and confident decisions as they prepare for life beyond college. The second part of today's event is our felicitation ceremony, where we take a moment to recognize and celebrate the achievements of our students, whether academic, extracurricular or leadership based. These students have demonstrated not only hard work and excellence, but also the values and spirit that our institution upholds.
To the students receiving honors today, congratulations. Your dedication sets an example for others and reflects the quality of education and mentorship we strive to proud. Let us all make the most of this occasion by listening, learning and celebrating together. Once again, I welcome you all and wish today's program a great success. Now, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जो है शोएब वाले है। मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। सालाना जो है 2 महीना जो ये एग्जाम के बाद रहता है, मैं कर्नाटका के 20 शहर में जाके फ्री प्रोग्राम करता हूँ जिसका नाम है करियर एक्सप्रेस करके। 20 शहर जाके करियर एक्सप्रेस करके प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम बच्चों को जो है करियर क्लैरिटी, स्किल डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अवेयरनेस प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं। ये कंप्लीट प्रोग्राम फ्री रहता है। अभी हमारा प्रोग्राम जो है बेंगलुरु में हुआ है, तुमकुर, बागलकोट में इलकल, फिर मैंगलोर, ऐसे मुख्तलिफ शहर में जो है हमारे प्रोग्राम जो है हम करेंगे। प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम लोग क्या है, हमको जॉब या करियर मानने में हमको 5-6 करियर मालूम है। इंजीनियरिंग है, डॉक्टर हो, बीकॉम अकाउंटेंट हो, इसके अलावा बहुत सारा है, आर्किटेक्चर है, राइट। फिर जो है नॉटिकल साइंस जो नेवी आर्मी इसका है। फिर जो है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि NID, नाटा, क्लैट करके लॉ के लिए एग्जाम है, CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पढ़ने के लिए एग्जाम है। तो हम जो है नीट और JEE में रह जाते हैं। नीट जो डॉक्टर के लिए, JEE जो इंजीनियरिंग के लिए, हम सिर्फ इसमें रह जाते हैं। मेरा मकसद क्या है कि मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी है हमारे बच्चों को पता चलना उसके बारे में, वो और मुख्तलिफ करियर ऑप्शंस जो है, जैसा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा स्कोप है, उसके बारे में हमारे बच्चों को बताना, ये सब जो है मकसद के साथ जो है ये करियर एक्सप्रेस करके सालाना जो है 2 महीना जो है हम टूर पे निकल के हर शहर जाके हमारे बच्चों को जो है एक कंप्लीट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सर, आपकी कितनी साल की एक्सपीरियंस है? मेरा एक्चुअली जो है टोटल 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और करियर काउंसलिंग में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, जी हिंदू न्यूज़पेपर जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ टाइप होकर हम करियर गाइडेंस प्रोग्राम करते हैं और इंडिविजुअल करियर काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं एडमिशन के लिए, सब कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।
आई होप आई एम ऑडिबल फॉर ऑल ऑफ यू। सुनाई दे रहा हूं ना सही से, दूर तक भी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कितने लोग हैं जो 10th क्लास या 12th क्लास अभी खत्म किए, 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं? रेज योर हैंड गाइस। ओके। आप में से कितने लोग हैं राइट जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? माशाल्लाह, 1 2 3। कितने लोग आप में से डॉक्टर बनना चाहते हैं? कितने लोग आप में से मर्चेंट नेवी में जाके काम करना चाहते हो? शिप का राइट, शिप। आप में से कितने लोग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो? राइट। आप में से कितने लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनना चाहते हो? राइट। हमारे कौम के अंदर अभी क्या हो रहा है, हमको जो काम करते ना, एक अच्छे इज्जतदार काम करना है, तो 8 करियर से ज्यादा पता नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अकाउंटेंट, मैनेजर, राइट, और कुछ है गिने चुने जो है 8 से 10 से ज्यादा हमको पता ही नहीं है। दुनिया में जो है 15,000 से ज्यादा करियर है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या बीकॉम, बीए, बीएससी पढ़ने के बाद में कोई भी एक नौकरी मिल गई तो उसमें चले जाते, राइट। पसंद आया वो नौकरी करते, नहीं पसंद आया दूसरी नौकरी में जाते, राइट। ऐसे 3-4 नौकरी बदलने के बाद किसी एक में सेट होकर जिंदगी गुजार के खत्म कर देते। What is your name, brother? तुम्हारा रयान, राइट। मान लो कि रयान का जो है बर्थडे है, ओके। रयान का बर्थडे को इतना बड़ा सा एक गिफ्ट लाके मैं रयान को दे देता, ओके। बर्थडे खत्म हो गया, मैं भी घर चला गया, गिफ्ट है, राइट। कबर्ड में रयान रख दिया उसको। हर दिन सुबह में जाता, कबर्ड खोलता, गिफ्ट देखता, खुशी होके बंद करके स्कूल चला जाता। हर दिन जो है कबर्ड खोलते, गिफ्ट जो पैक है ऐसे ही देख के चला जाता, उसके अंदर क्या है किधर है कुछ नहीं देखता। मुमकिन है ऐसा हो सकता, राइट। क्या रहा, कब गेस्ट घर से जाएंगे, कब गिफ्ट खोलेंगे करके बैठा रहते नहीं। एक मामूली सा एक तोहफा के लिए हम इंतजार करते कि कब मेहमान घर से जाएंगे, कब हम तोहफा को खोल के देखेंगे क्या है करके, राइट। अल्लाह ताला जो है हमने एक हुनर का तोहफा दिया है, सबको दिया है, राइट। सबको जो है कुछ ना कुछ हुनर, कुछ ना कुछ एक स्किल्स, एबिलिटीज का जो है तोहफा दिया है अल्लाह ताला, राइट। अशरफुल मखलूकात, पूरे जो क्या जानवर, इन सबको, जिन सबको जो है सजदा करो इनको, अल्लाह जब बोला, राइट, इब्लीस ये सब नहीं माना तो उसको जो है दखल अंदाज कर दिया और शैतान हो गया, राइट। किसके लिए? राइट, हमारे जैसे इंसान के लिए, राइट। तो प्रोग्राम का मकसद क्या है, हमारे अंदर जो गिफ्ट अल्लाह ताला दिया है उसे बिना खोले बहुत सारे लोग जिंदगी गुजार के चले जाते, राइट। वो गिफ्ट को खोल के क्या है देखना,
मेरा काम ये नहीं है। साल में 10 महीना जो है मेरा मार्केटिंग एजेंसी है, मैं कॉलेजेस का मार्केटिंग करता हूं, उसमें मेरा जो है रोजी रोटी वो है। तो हर साल मैं क्या करता हूं, 2 महीने के लिए सैटरडे संडेज को मेरा जो है फ्री करके, बीवी बच्चे से परमिशन, नो सैटरडे संडे फॉर यू, मैं जो है कर्नाटका के हर एक शहर में जाके हमारे जो भाई बहन बच्चे जो हैं उनको मैं बोलूंगा कि उनका गिफ्ट क्या है और कैसा उसको ये कर सकते हैं, राइट। तो करियर एक्सप्रेस का प्रोग्राम क्या है बोले तो, कल रात को थोड़ा वॉइस कम कर, थोड़ा वॉइस कम कर दीजिए सर, एको हो रहा है। करियर एक्सप्रेस का मतलब क्या है बोले तो, कल रात को बिना सोए 3 बजे कावेरी एक्सप्रेस में चढ़ के 7 बजे मैसूर को जो पहुंचकर 4 घंटे इंतजार करके तुम्हारे पास जो है ना, उसका नाम ही करियर एक्सप्रेस है। अल्लाह ताला ने हम सबको एक गिफ्ट, एक स्किल दिया है। बहुत सारे हमारे अंदर जो है, मदर्स कितने लोग यहां पे, राइट? आपकी बच्ची है, आप है, ये है, नाम क्या आपका? आमीना। तुम्हारी अम्मी आ जाएगी, किस लिए आए बोलो, किस लिए आए? संडे 11 बजे तक सो सकते थे, राइट? सुकून से बिरयानी बना को खा ले को। क्यों आए? हर माँ जो आई है एक रीजन से आए। आज उनको 1000 चीजें करने के वास्ते, मोबाइल देख सकते, टीवी देख सकते, सो सकते, एक ही मकसद से आए। जो तकलीफ मैं झेली, मेरा बच्चे वो नई तकलीफ झेलना, कुछ तो एक अच्छा हो जाता है एक प्रोग्राम में करके आए। देख कितने लोग मानते, मदर्स कितने लोग मानते, उसलिए आए आप करके। ये है हमारा कौम का हालत। तो क्या करना, हम जो है दुनिया में कितना करियर, राइट? एक आदमी क्या करते, एलकेजी से लेकर पीयूसी तक 15 साल जो है स्कूल में बिताते, स्कूल और कॉलेज में। तो 15 साल जब स्कूल और कॉलेज में बिताते, उनको जो है फाउंडेशन नॉलेज मिलता, सही और गलत की पहचान मिलती, राइट? दोस्त और अहबाब मिलते, आदत अखलाक मिलता, मैथ्स साइंस, राइट? उसका बेसिक नॉलेज मिलता। 15 साल, 3 साल या 5 साल जो है उसके बाद जब कॉलेज में जाते डिग्री या मास्टर्स करने के लिए, उनको क्या मिलता है? एक स्पेशलाइजेशन मिलता, राइट? जितना भी मैथ्स साइंस सब सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हो, अभी आप सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ मेडिकल रिलेटेड पढ़ोगे, आप अभी सिर्फ शिप रिलेटेड पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ोगे। एक स्पेशलाइजेशन का एक डायरेक्शन मिलता। ओके, मान लो इस सब में जो है 21 साल हो गया, राइट? अभी एक 60 साल हमारा जिंदगी मान के चले तो भी जो है 1/3 हिस्सा 20 साल जो है पढ़ाई में निकल गया। सो ग्रेजुएशन से लेकर रिटायरमेंट तक जो 60 साल में, ग्रेजुएशन से लेकर रिटायरमेंट तक कितना है? 40 साल है। ये 40 साल जो जिंदगी है हमारा, उसे हमें क्या बोलते हैं? करियर। एक जॉब और करियर का डिफरेंस है। जॉब क्या है? हर दिन सुबह जाते, सुबह से शाम तक मेहनत करते, पैसा घर लेके आते, खाते, फैमिली को देखते, सोते, रूटीन ऑफ द लाइफ है। जॉब बदलते ही रहता। लेकिन करियर क्या है? एक ऐसे जॉब जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, एक ऐसे जॉब जो तुम पसंद से करो, एक ऐसे जॉब जिसमें हर साल आपको ग्रोथ मिले।
कितने लोग यहाँ हैं जो फादर है या कोई भी पेरेंट्स है, आपका हर दिन का काम वही है, रूटीन है। 25 साल से वो जाएंगे, सुबह में दुकान ओपन करेंगे, बिजनेस करेंगे, 25 साल में रात में जो है शटर बंद करके आएंगे, राइट। 25 साल में एक फैक्ट्री जाएंगे, अकाउंटेंट बैठेंगे, बैठ के आएंगे। ये जो है 25 साल इसको आपने जॉब करके देखा है ना, इसलिए जो है रूटीन लाइफ हो गया है, ग्रोथ नहीं है। क्या सारे छोटे छोटे बच्चे 10वीं जमात और 12वीं जमात के बच्चे हैं, तुम इतने बड़ी बात करते हैं करियर का, जॉब का। सही वक्त जो हमारा माइंडसेट बनाने का है अभी है, क्योंकि इसके बाद जो है भागम दौड़ी की जिंदगी हो जाती है। कॉलेज खत्म करो, जॉब लो, जिम्मेदारी लो, राइट। अपने आप के लिए सोचने का वक्त और मौका नहीं मिलता। तो 10वीं जमात जो भी सीबीएसई स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल्स जो भी रहता है ना, आईजीएसई स्कूल्स, 6th में फाइनलाइज कर रहे थे बच्चा क्या पढ़ना है, निवृत्ति, राइट। आईसीएसई स्कूल वाले 8th 10th में फाइनलाइज कर लेते, हम जो है एटलीस्ट 10th ग्रेड में फाइनलाइज कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, 10वीं जमात तक कॉमन पढ़ते। हमारे जो सिस्टम है स्टेट बोर्ड पीयूसी का, फर्स्ट पीयू में जो है साइंस लेना, आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना डिसाइड करना पड़ता। कोई भी एक डायरेक्शन को चूज करना ही पड़ता। तो उसमें जो है 10वीं जमात से पहले जो है हमको डिसाइड कर लेना कि जिंदगी में क्या करना है, राइट। देयर इज ए सेइंग, एक कहावत है, रैंडम एफर्ट्स विल गिव यू रैंडम रिजल्ट्स। कब कोर्स डिसाइड करते पीयूसी पढ़ना, क्या पढ़ना करके, व्हेन यू डिसाइड, रिजल्ट आने दे, मार्क्स आने दे, राइट। मार्क्स आने के बाद जाके बात करेंगे। मार्क्स से आपको जो बनना है उसका लेना देना ही नहीं है। अगर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना ही है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पीयूसी में 60% और 50% से मार्क, 60% फॉर कैटेगरीज में है, ओबीसी के लिए 50% फॉर ओबीसी के लिए है, उतना ही उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। दुनिया में जितना अभी कोर्स आप उठा लो, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है 50% मार्क इज एनफ, 50% मार्क इज एनफ फॉर एनी कोर्स विच यू वांट टू टेक। नहीं 90% ही हमको आना है, राइट, उसके बाद ही कोर्स मिला, ऐसा नहीं है। तो रैंडम एफर्ट्स डाल के ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिना प्लानिंग तो क्या अभी ये कर लिया। जिंदगी में जब जब एक डिसीजन लेना है, 2-3 ऑप्शन सामने, कुछ ना कुछ चूज कर लिया, तो रैंडम एफर्ट्स विल गिव यू रैंडम रिजल्ट। आप सक्सेस हो पाओगे या नहीं भी हो पाओगे, राइट। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। आप 10वीं जमात के बच्चे, अब 10वीं जमात क्लियर करें तो आपके पास बहुत क्लैरिटी रहना। इतना तक मैं क्लैरिटी एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि ओके मैं पीयूसी यहां पे पढ़ूंगी, ये स्ट्रीम में साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इसके बाद मैं ये कोर्स सेलेक्ट करूंगी। ये कोर्स जो है ये कर्नाटक के ये 5 कॉलेजेस में है, राइट। वो कॉलेज में जाने के लिए मुझे इतना मार्क्स लेना पड़ेगा, फीस इतना है। क्या हमारी फैमिली अफोर्ड कर सकते? नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक ही जरिया है, अच्छा मार्क ले लो तो कम फीस होगा। दुनिया में कहीं भी ले लो, सिंपल फार्मूला है, मार्क्स अच्छा लो फीस कम है, मार्क्स कम लो फीस ज्यादा है, राइट। तो अल्लाह ताला जो गिफ्ट अता किया है, हमको पहले जो है उस गिफ्ट को ओपन करके देखना है, हमारा अंदर क्या हुनर है। ओके, ओपन करके देखने के बाद में क्या करना है, राइट। हमारी अम्मी क्या करती, कोई भी अच्छा खिलौना या गिफ्ट आया तो उसको शो पीस की तरह बीरो में रख के लॉक कर देते, राइट। नहीं, उस गिफ्ट को जो है
हमको जो है इस्तेमाल करना है। मेरे हिसाब से सर बहुत ज़्यादा बात करें अबाउट करियर गाइडेंस। मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह का शुक्र, जब आप एक स्ट्रीम के अंदर जाकर काम करना है तो बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2013 में ट्रेनर कहाँ बना इन्फोसिस मैसूर में, बच्चों को जाकर पढ़ाना। ट्रेनर को बोलता तो ना बोलते जिम ट्रेनर क्या कहते हैं, तो वो ज़माने में मुझे ट्रेनर का जॉब मिला और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाना शुरू किया। मेरी ज़िंदगी 2013 में जब मैं बैंगलोर को गया तो 16 इंटरव्यू में बैक टू बैक फेल हुआ। खाली एक रीज़न क्या था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, कहीं को इंग्लिश नहीं आती थी। दोस्त ऐसे थे इंग्लिश बात करने को बैठे रह गए थे, वो आया ही नहीं, पढ़ा इंग्लिश बात करने वाला करके। मगर आज जब मजाक दिखता है, जब मैं बैंगलोर को जाता और रोजी की तलाश में था, उस टाइम पर वो मजाक बहुत ज़्यादा पड़ा मेरे पास। घर में फोन करते क्या मिला क्या जॉब, तुझे 20 साल पढ़ा है, तुझे मिला क्या जॉब, नहीं मिला नहीं जॉब, कहीं को नहीं मिला जॉब। सिंपल काम, एक चीज इंग्लिश बात करना नहीं आता। उन्हें क्या की बोल रहा है समझ में नहीं जा रहा, उन्हें एक ऐसा वर्ड बोल रहा है वो पूरा सिर के ऊपर से चले जा रहा है। तो पॉइंट ये था कि मैं अब बात करना तो अब मुझे जॉब मिलना तो कैसा मिलना, तो मुझे कहाँ आखिरी में जॉब कहाँ मिला, flipkart.com में जॉब मिला, जिसमें बेसिकली हिंदी बात करना था, तो इंग्लिश का जॉब नहीं मिला। वहाँ एक डिसीजन लिया मैं मेरी लाइफ का कि अब से इंशाल्लाह अगर मैं बैठ कर किसी के साथ रहता हूँ, उन्होंने मेरे साथ इंग्लिश में बात करना। तो वहाँ से शुरू हुई मेरी इंग्लिश की शुरुआत कि मैं इंग्लिश बात करता हूँ। इफ़ यू गाइस वांट टू टॉक, गेट आउट, सिंपल। बात करने के ढंग को सुनना, अगर नहीं सुन रही, देखो सुनने की सिफत नहीं है तो पढ़ने की सिफत नहीं है, सिंपल काम। अगर आप जाकर देखेंगे सुनने की सिफत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा थी। हमारा क्या है 2 मिनट नहीं सुनते किसी भी कोई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत उठाकर देखेंगे आप, कौन तो भी अगर कुछ बोल रहा तो ऐसा बैठने थे कहते क्या है गेस्चर यह है कि सामने वाले को मैं बहुत ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। सुनने की सिफत कम, आज सभी एडवाइस देना चाहते हैं, तो सुनने की सिफत रखो। सुने, समझ में जाता है, समझ में गया, क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आया तो मैं जाको पावरफुल बनती। सुनना चाहिए तो पावरफुल नहीं बनते, समझ में गया, ये सुनो रे। तो पहली चीज क्या है, तुम्हारे डिसीजन जो अब तुम्हें ले रही बहुत इंपॉर्टेंट। और इस्लाम, अगर इस्लाम देखो बहुत क्या सारे में क्या समझती हैं, दीन अलादा है और दुनिया अलादा है, वो नहीं है। दीन ऐसी चीज है जो आपको दुनिया सिखाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप बोलती कैसा एक ओबीडियंट स्टूडेंट बनना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में जाता है कि कितने ऑनेस्ट आदमी थे उन्होंने।